Again, welcome friends. Now we'll go for balanced and unbalanced Wheatstone's network. Balanced and unbalanced Wheatstone's network. Out of that, balanced Wheatstone's network is already known to you. We have to see unbalanced Wheatstone's network. So there is a problem asked by one of the students. I will not disclose the name. I actually wrote the name, so I have folded that. That student knows who asked that problem. So he was asking, sir, how to solve that. I told him I have to take that. Means it is a coincidence that whatever I am thinking, this problem we have to take tomorrow. The students are asking the same problem. They are asking, sir, solve this. Okay, I am very happy. Okay, so now here, what I have told you, once you are getting like this case, C1, C2, C3, C4 and C5. What I have told, C1 by C2 is equal to C3 by C4, or C1 by C3 is equal to C2 by C4. अगर ये if it is valid, then it is called as the if it is there, then it is called as balanced. And then what we do, we neglect this. Okay, so let us redraw the given circuit. Okay, whatever is given, I will try to redraw. This is A. Okay, this is 1, this is C2, C3, C4, and this is C5. 1, 2, 3, 4, and this is 5. वैल्यू कितना है बेटा? वैल्यू डालो C to C to CC, और ये to C. तो इसका क्या हो रहा है? इसका नहीं आ रहा है अपने को बैलेंसिंग, बिकॉज हियर 1/2 मतलब C1 by C2 इज नॉट इक्वल टू C3 by C4. उल्टा है उसके. इसी केस में इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड Wheatstone's breach. Okay, so what to do for unbalanced Wheatstone's breach? So for that purpose, we have to first study. This is again the technique used in the electrical engineering most of the times, or for BTech or for MSc BSc. Okay, so that is called as the star delta. Star delta connections. Otherwise you will ask for the diploma persons, na, they are doing that polytechnic electrical engineering. So it is a part coming from electrical and electronics. In that they are doing this star delta connections. बेटा अगर आप लिख सकते हो, then in your notebook with me you have to draw that, you have to write that. Okay, what is the star? Star का मतलब है ऐसा. हाँ, इसके बीच में you can put the resistance also. It is same for resistance, same for capacitance, same for the spring also. Find out effective na spring also, you can use this. So it is called as star delta. Okay, so I'll call this to be X, this to be Y, and this to be Z. So it will become CX, this will become CY, and this will become CZ. इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे स्टार. ठीक से नोटबुक में निकालो मेरे साथ, एक बाजू को मोबाइल रखो एंड ट्राई टू इमिटेट मी व्हाट आई एम राइटिंग द सेम. एकदम पक्का ठीक से लिख रहा हूँ, किसी को भी किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है. हाँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको. ओके ओके ब्रो, आई विल डू दैट नाउ. और डेल्टा कैसे आता है? डेल्टा दिखाते हैं ऐसे, उल्टा वाला ट्रायंगल. ओके, समझ गए? अभी इसको बोलते हैं हम C1. ओके, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3.
ओके, तो इसका और इसका व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम दिखाता हूं. फॉर दैट सेक नाउ कनेक्ट दिस इन योर माइंड. ये लाइन को कनेक्ट किया, ये है अपना C1, इधर लिखो C1. इसीलिए मैंने पहले आपको लिखने के लिए बोला था, मतलब पहले वाला पॉज करके ले लो बिफोर ड्राइंग दिस. बाद में आपको ये नहीं मिलने वाला, ये सब पूरा खराब हो जाएगा. बाद में इसको भी जोड़ो, ये आपका ये नोड होगा, इसको बोला आप C2. ये बन जाएगा आपका C2, और ये नोड को जोड़ो और दैट विल बिकम योर C3. समझ गए क्या क्या करने का. दिए हुए नेटवर्क में स्टार में दो हैं, उनके आगे वो ये, इस साइड को इन दोनों के आगे ये, और इन दोनों के आगे ये, इसको बोलेंगे C1, C2 और C3. फॉर्मूला कैसे, फॉर्मूला एकदम सिंपल है. क्या है, ईच का फॉर्मूला C1 का निकालता हूं. what is the multiply neighbors. Multiply neighbors divided by add all. C1 मतलब ये कॉमन है सबका. कैपेसिटेंस कैसे निकालना, मल्टीप्लाई नेबर्स एड ऑल. नेबर मतलब क्या, यहां पे व्हाट आर द नेबर्स, दीज नेबर्स, और एडिशन ऑल दिस. इसको लिया तो नेबर्स कौन, ये दो, एडिशन तो सेम रहने वाला है. यहाँ पे नेबर्स कौन, ये, इसलिए उसको नेबर बोला है. तो अभी फॉर्मूला बनाते हैं हर एक चीज़ के लिए. ठीक है, ये दिख रहा है बेटा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. ओके, तो यहाँ पे एक एक आपको छोटे छोटे कागज़ पे लिखवा के देता हूँ. ओके, बस कागज़ तो थोड़ा थोड़ा है. ओके, तो बेटा व्हाट विल कम, नंबर 1 यहाँ से चालू करते हैं. C1, अभी यहाँ पे देखो C1 का नेबर कौन है, CX CY. सो CX CY अपॉन CX प्लस CY प्लस CZ मिल गया. वैसे ही C2 का नेबर कौन, CX CZ. सो व्हाट आई विल राइट ओवर देयर, यस, एनी गेस. C2 will be CX CZ upon C1 plus CY, sorry, CX plus CY plus CZ. ओके, और लास्ट वाला क्या आएगा, C3 will be CY CZ upon CX plus CY plus CZ. हो गया, समझ गया आपको, you got my point. Okay, now we'll go for the actual problem. Actual problem is this. अभी इसका स्टार डेल्टा बनाते हैं. ओके, यहाँ पे आया ये C, यहाँ पे 2C, यहाँ पे 2C, here it is 2C, and here also it is 2C, and they are connected like this, and we have to find out. ओके, तो यहाँ पे स्टार कहाँ दिख रहा है, कौन सा भी एक स्टार चूज करो, अगर ये नहीं तो ये, तो इसको मैं स्टार बोलता हूँ. कौन सा, ये वाला. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये बन गया स्टार. दिख रहा है ना, वैसा इसके जैसा ही दिख रहा है ना, ये. ओके, नाउ हाउ मेनी आई विल कनेक्ट, 3 आई विल कनेक्ट. सो आई विल कनेक्ट दिस. ओके, व्हाट इज दिस, C, 2C, ये 2C, ये 2C, ये C. मैंने इसको कनेक्ट किया. I have called this to be any, you call it as A. इसको कनेक्ट करो, इसको लिखो B. इसको कनेक्ट करो, इसको लिखो, अरे बाप रे, ABC का प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसको बोलो D. ये A, B और ये D. Now what I can write,
ए बी डी को बाद में कैलकुलेट करके लेते, पहले इसका सर्किट निकाल के लेते। ए आएगा ये अपना, नाउ सी डी ए एंड टू सी दे आर कनेक्टेड एट वन नोड, सो आई विल राइट हियर ए, बाद में ये डी और ये बाद में टू सी। ए तो डायरेक्टली चला गया है बी को, तो आई विल राइट ओवर हियर बी। नाउ डी क्या हुआ है, डी और टू सी को इकट्ठा बना है, और यहाँ पे फिर से ये बी और यहाँ पे सी। दिस यू कैन डू बाय बोथ मेथड्स, हाँ, you can take this like this and you can take them parallel in series, there is no problem, but I always take like this. Understood? Have you understood this? Okay, now a b और d को कैलकुलेट करते, नोटबुक में लिख के ले लो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। a कैसे आएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेबर्स अपॉन एडिशन। एडिशन तो हर टाइम 2c 2c 4c प्लस c 5c आने वाला है, सो एडिशन एक टाइम लिख के रखता हूँ मैं, एडिशन इज इक्वल टू 5c, बस हो गया अभी, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, ए कैसे निकालना है, ए विल बी मल्टीप्लीकेशन 2c इंटू सी नेबर्स 2c स्क्वायर अपॉन 5c, मतलब ये कितना हो जाएगा 2c बाय 5। बी को निकालो, बी कौन है 2c 4c स्क्वायर अपॉन 5c, दैट विल बी 4c बाय 5, और c आएगा, सॉरी c नहीं, d आएगा, d के नंबर कौन है अगेन 2c एंड c, सो 2c स्क्वायर अपॉन 5c, इट विल बी 2c बाय 5। तो इधर लिखो अभी 2c बाय 5, d कितना है 4c बाय 5, b कितना है, सॉरी ये b 4c बाय 5 ये है, और ये 2c बाय 5। अभी इसको कैलकुलेट करो, जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट दिस। आई डोंट नो द आंसर, सो आंसर दैट स्टूडेंट विल गिव अस, once he will give me I will give you that answer in the next day, and on that day we will see whether that answer we are getting or not. So all of you, today is your homework to solve that वीडियो। अगेन देखो, बहुत लंबा प्रोसीजर है, एंड ट्राई टू डू दैट। एक बार आपने बना लिया ये, देन नो प्रॉब्लम, कहीं भी आप स्टार डेल्टा और क्या करो, टेक एनी कॉम्बिनेशन एंड ट्राई टू डू विथ स्टार डेल्टा कन्वर्जन। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द doing the star delta problems. Thanks a lot. Any query you may ask me.